just at home, because the behavior was really, and I was really worried about what has happened to him. So then I just came and I said, everybody started asking why after a long time he came, but I had my, concerns, because I was unable to get out of the house, which I used to come out earlier, which was quite easy for me to come out. So, but then, that day, God really had a divine plan for me, and He knew how He had to, get me to Trotby and my first school of breakthrough. So I would overly like to say that in all these years, especially the last year, God was trying to make me and prepare me. He was breaking me down ताकि मैं एक नई तबीता बन के बाहर निकल सकूं, so that the old Tabitha will die and the new Tabitha will come out. And I was like, God, it's too much now. It's the peak. I can't handle it. You favored me earlier. 4 or 5 things which were really major things I was doing together. When a psychologist used to say that how do you manage all these things, and I knew that how I knew, because it was God who was helping me to manage them. It's not me. And everybody used to be amazed. And I mean, to be very honest, God had been so faithful to me. The journey was not easy. I could have a nervous breakdown myself in these conditions. I mean, आपको पता ही है कि हालात जब ऐसे हो, कोई isolated आप हो, you are isolated और आपकी कोई help करने वाला नहीं है, और आपके पास ये बच्चा है जो हर वक्त आपको उलझा के रखता है, तो it's not easy. It's not easy at all. I mean, everybody used to say कि how do you manage him? वो 10 मिनट भी इस बच्चे के साथ रहना तो वो it gets overwhelming for that person. लेकिन God had a greater plan for both of us. क्योंकि मैं चाहती थी, हर को कहती थी कि बच्चे के लिए दुआ करो. I used to say that बच्चे के लिए बाद में कर लो, पहले मेरे लिए कर दो, because I need deliverance myself. So then it was then on. I'll come back to the 20th of April, the Resurrection Day. Finally, I met Sangeeta Didi over here and Anil Bhai, and they were the reason why I got here on that day. अपना ना दिल बड़ा करके कि नहीं मैंने जाना है, क्योंकि इसको तो हम दोनों 1-1.5 महीने से घर के अंदर ही हैं. But God knew how my breakthrough was coming. It was slow. He was preparing me. बिल्कुल easy नहीं था, बर्दाश्त से बाहर था. Like जिसको कहते हो ना कि बिल्कुल ख़त्म हो गई हूँ. Like जो सब्र है, पेशेंस है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, जो कि मेरे में काफ़ी था. अपने बच्चे से ना आप कहते हो कि बस थक गई हूँ मैं, अब मैं और कितना करूँ. और जबकि एक माँ के लिए बहुत मुश्किल है कहना, it's not easy. लेकिन है कि I had to embrace my child because he is my child and I know he is Emmanuel. So then there was a breakthrough. She prayed for me. And she got my contact number. That was the real breakthrough. She started pouring out to me कि you can do it, तबीता आप खुद भी इसके लिए प्रेयर कर सकते हो. मैंने कहा मैं कर तो सकती हूँ, मैं करना भी चाहती हूँ, पर मुझसे होती नहीं है, because I needed my own deliverance first. तो मेरी बहन भी कहती है तबीता तुम पहले अपने आप को देखो, इमैनुअल खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा. तुम प्रे करोगी, छोटी छोटी प्रेयर्स ही तुम करोगी, जो उसके नए बिहेवियर्स आए हैं वो ख़त्म हो जाएगा खुद ही, अगर तुम खुद पहले ठीक हो जाओगी तो देन संगीता दीदी I used to call her, and she used to give me छोटी छोटी बातें उन्होंने मुझे बताना कि तबीता ये कर लो, एक वचन को तुम ले लो तो it will, उसको बोलना डिक्लेयर करना शुरू कर दो तो you will see the difference. So then I started sharing on and off, थोड़ा सा ना उनको तंग करना शुरू कर दी. But she was, I must say, she has really touched my life. And then she knew I really needed the breakthrough. And Trotby again, she said Trotby आ रहा है. So again there was a question कि Emmanuel को कैसे संभाला जाए. It was not easy because other children would be there जो कि 1 साल के भी हैं, 10 years के भी हैं, 12 years के भी हैं. So then finally it was my case was presented to Auntie Bilkis and Sangeeta Didi had to say तबीता फिक्र ना करो, अब तुम्हारा केस आंटी बिल्किस के हाथों में चला गया है तो तुम्हारा छुटकारा आ गया है, तुम्हारा केस सॉल्व हो गया है. तो बट दैट वाज अ डिवाइन प्लान बिकॉज मेरा इस एशियन
आना और इनसे मिलना, बिकॉज गॉड न्यू दैट आई हैड टू गो थ्रू अ प्रोसेस विच वॉज नॉट ईजी। आपका दिल करता था कि बस हो गई है, कुछ ना कुछ कर लो अपने आप को या बच्चे को, जो कि एक दो बार लाइक था कि व्हाट इज दिस, कि मैंने क्या किया है। तो देन फाइनली आंटी बिल्किस देन शी स्टार्टेड कॉलिंग मी। उनको तो सबसे ज़्यादा ना किसी और को फिक्र ना हो, लाइक शी यूज्ड टू कॉल मी बेटा एंड शी यूज्ड टू से टू संगीता दीदी दैट वो तो बहुत ट्रबल में है, कैसे करती होगी, बट आई न्यू गॉड gave me the strength to get through it and to look after this boy. अब यकीन माने they had a beautiful team arranged and I remember Auntie Bilkis saying that, Amir saying that कि अगर हम नहीं इनको accept करेंगे तो और कौन करेगा, and that was very true. Emmanuel and I had been rejected through my own family members in Mosul. ठीक है, पूछना कि हाँ आप कैसे हो, आपने कभी कॉल ही नहीं करना, हाँ आपने तो कॉल ही नहीं की, भी कॉल क्यों करें, हम तो आपको टेक्स्ट भी किया है, मैसेज भी किया है क्रिसमस पे, इस साल मैंने भी नहीं किया, मैं तो देयर वाज नो रिस्पॉन्स। तो आई सेड फाइन, कोई नहीं है, ही इज देयर फॉर अस एंड ही वाज एंड ही इज स्टिल देयर विद अस, जिसने हमारा ब्रेक थ्रू लिया है। And Amir, तो I would say School of Breakthrough is really a good place, not only for me, मेरा तो शुक्र है वहाँ पे जितने स्टूडेंट्स थे उन सबको डिलीवरेंस मिली है, और ऐसी टीचिंग शायद ही हमने कहीं सुनी होगी। It was really an awesome time, आपको हर वक्त 5 सेशंस, और मेरे ख्याल में मैंने इन 10 डेज में जितना टाइम खुदा को दे दिया है ना, उतना मैंने कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं दिया होगा। अथॉरिटी के बारे में सीखना, पावर के बारे में सीखना, दैट वाज अमेजिंग एंड द स्टाफ वाज अमेजिंग। और मेरा ये कहना है कि आप यकीन माने कि उनके टीम का ना इमैनुअल को संभालने के लिए देवर टीनेजर्स थे, 22 ईयर्स के बच्चे थे, और ऑब्वियसली टीचर्स भी थी जो मेरी लाइक फ्रेंड्स भी थी, ब्यूटीफुल फ्रेंड्स विच आई नो देम पाकिस्तान में उनके साथ थे। सो दे वर सो लविंग टूवर्ड्स हिम। मैंने ऐसा प्यार जो था ना, यहाँ पे अगर देखो बहुत में कुछ प्यार करेंगे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, रिजेक्टेड, तो बट ही वॉज एक्सेप्टेड बाय एवरी सिंगल पर्सन ओवर देयर एंड इट इज़ माई टेस्टिमनी, नॉट ओनली द स्टाफ बल्कि जो हमारे साथ स्टूडेंट्स थे they also accepted Emmanuel, जिनमें टीनेजर्स भी थे, जिनमें मिडिल एज भी थे ऑब्वियसली, और कुछ ओल्ड एज के भी थे। एवरी सिंगल पर्सन एक्सेप्टेड Emmanuel. He was being prayed for every single day, और इसके लिए बहुत प्रेयर की वहाँ पे सबने, पूरी टीम ने, एंड स्टिल दे स्टैंडिंग इन गैप विद मी एंड आई गॉट, मैंने कहा फिर लाइक इट वॉज सच एन अमेजिंग थिंग कि मुझे डिलीवरेंस वहाँ से मिली, बिकॉज वट आई हैड यू नो, और मुझे पता चला कि मैं उनको कह रही हूँ कि हाँ मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चे के लिए प्रे करूँ, क्योंकि सबसे बड़ी जो मेन चीज़ थी वो मेरी प्रेयर है इमैनुअल के लिए, विच हैज़ टू हील हिम एंड टेक हिम टू डिलीवरेंस। तो ये संगीता दीदी मुझे उन्होंने बड़ा कहती थी, कविता मेरा ख्याल है आप खुद भी कर सकती हो, और मैंने कहना मैं करना तो चाहती हूँ पर मैं कैसे करूँ, बट आई हैड ऑल द आंसर्स इन टॉटपी। स्कूल ऑफ ब्रेक थ्रू इज स्कूल ऑफ ब्रेक थ्रू, एंड वहाँ पे जितना लव और अफेक्शन, हाँ दूसरी बात ये है कि जो मान का बिहेवियर था ना वहाँ पे, वो दूसरे दिन ही आई सेड आई कॉन्ट हैंडल दिस, आप लोगों से हो नहीं रहा, मेरा तो ध्यान सारा इसकी तरफ होता है, आई वॉन्ट टू गो बैक, मैंने नहीं आना, बट all of them said no, you have to stay here, and I thank God कि उन्होंने रोका, then otherwise मेरा छुटकारा नहीं आ सकता था। and I believe कि इमैनुअल की हीलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, he is very comfortable. Second day he said that I don't want to go home, and he was not happy to come back either because the love he got from there, और ये worships में होता था, even कि वहाँ पे जो बच्चे भी थे they were so loving to him, towards him, जो कि 8 years के थे, 4 years के थे, उनको ट्रेन इसका, और they understood his behavior, 12 years के, 13 years के, even the children were so compassionate towards him, जो आपको मैं अब ये टॉपिक वहाँ पे बताना भूल गई कि आपने मुझे तो टाइम ज़्यादा दिया, वहाँ पे 2 मिनट्स थे, लाइक तो 2 मिनट्स में मैं क्या उनको बताती, लेकिन आई वॉज रियली ग्रेटफुल टू आमिर, जिसने बोला कि अगर हम इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, तो दैट इज़ व्हाट ट्रॉटबी इज़ ऑल अबाउट, गॉड्स लव के बारे में अगर आप
प्रीच करते हो ना, तो प्रीच करने के बाद उसको एक्शन में अगर मैंने देखा तो वो टॉट भी है। आपको वहाँ पे हर कोई, लाइक एवरी पर्सन इज सेल्फलेस, दे फॉरगेट दैट दे आर टीचिंग, दे आर नॉट, वो टीचिंग है बट दे से इट्स नॉट अस, इट्स द होली स्पिरिट हु इज टीचिंग, एंड इट इज राइट, इट इज द होली स्पिरिट विच इज टीचिंग, एंड दैट वाज एन अमेजिंग, आई मीन ट्रॉटपी का, एंड आई नो इमैनुअल का मैंने डिक्लेयर, ऑब्वियसली आई एम डिक्लेयरिंग कि ही इज हील्ड, एंड वी विल सी जो इनविजिबल है वो इट्स पॉसिबल, मैं जो कर सकती हूँ वो करेंगे, एंड एवरीबडी इज प्रेइंग, and we know he is a living testimony, and we will see Emmanuel preaching and testifying in every church later on. So I'm really thankful to God for this wonderful opportunity that I had in the School of Breakthrough, which was a divine plan. It was not, I was not meant to be there अपनी तरफ से नहीं, it was a divine plan, and I know मेरी जो confusions थी कि I wanted to serve God, वो सारी ख़त्म हो गई हैं कि I know where I have to be, I know that in future when there is a TROTB, though I will be one of the staff over there. So anybody, you know, I mean obviously they are not staff में nurses हैं, everybody is there, वो सारे अपना काम छोड़ कर आए थे just to serve, और यकीन माने स्टूडेंट से ज़्यादा स्टाफ था, we had more staff than the students. So it is like God delivered me, and I know there are great plans for us, for Emmanuel as well, and I believe they will be fulfilled, and God knows how to take us through that. It's all glory to God. It's all glory to God. God is a wonderful God. He's an amazing God. वो ऐसी जगह पे हमें लेके जाता है जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते थे, और ऐसे रास्ते बनाता है जो मेरी समझ से बाहर थे। मेरी समझ, मैं कहती थी हाँ खुदा कर सकता है, लेकिन अब वो रास्ता कौन है, कौन आएगा? तो वो डिवाइन हेल्पर्स, ही सेंड मी डिवाइन हेल्पर्स टू फुलफिल माई डेस्टिनी. So they are my destiny helpers were there. He provided them. And all glory to God. Amen. Amen. Amen.